Hello viewers, welcome to my show Dr. Meenu's show Wellness 360। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आप दिन में थके थके रहते हैं? क्या ऐसा लगता है आपको सुबह उठने के बाद कि अभी भी नींद पूरी नहीं हुई, थोड़ी देर और सो जाऊं? दिन में बैठे बैठे कहीं पे किसी की वेट करते हैं तो बैठे बैठे सो जाते हैं, लंच के बाद सो जाते हैं, या सारा दिन इरिटेटेड रहते हैं विदाउट एनी रीज़न। क्या आप जानते हैं ये सारी आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं ये किससे जुड़ी हैं? नींद से। जी हाँ, आपकी नींद। अगर हम रात को ठीक से ना सो पाएं और अगर हमारी नींद पूरी ना हो तो दिन में यही होता है। इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जो कि हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसी टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ जो एक्सपर्ट जुड़े हैं वो एक ब्रिगेडियर भी हैं, डॉक्टर अशोक राजपूत। मेडिकल और डिफेंस फ्रेटर्निटी में शायद ही कोई होगा जो इन्हें ना जानता हो। इन्हें रिसेंटली दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से सम्मानित भी किया गया है। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर अशोक राजपूत से। वेलकम टू द शो डॉक्टर राजपूत। थैंक यू। इट्स एन ऑनर टू हैव यू हियर। डॉक्टर, सबसे पहले तो आप हमें अपनी जर्नी के बारे में बताइए। See, journey, I have a long journey. I graduated from Delhi Maulana Azad Medical College, did my post graduation, and then I joined the army as a specialist. I worked for 30 years in the army, and after that I've been practicing for last 7-8 years. My specialty is respiratory diseases, and during this time I have seen all spectrum of respiratory disease patients and illness. And when we talk about respiratory illness, for the last few years sleep apnea has been added a new tool in our diagnosis and treatment, and we are into it, and we have a center also with the name of Morpheus Healthcare Private Limited, where we perform the sleep studies and look after these patients as far as their devices and subsequent management is concerned. ओके, तो डॉक्टर, स्लीप तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी लाइफ में। अगर देखा जाए तो हम 1/3 ऑफ द लाइफ वी कीप स्लीपिंग, Yeah. एंड दैट इज व्हाट गिव्स अस द एनर्जी टू टेक केयर ऑफ द रेस्ट 16 आवर्स ऑफ लाइफ, Yes. जिसमें हम सारा कुछ मैनेज करते हैं लाइफ का। Yeah. तो स्लीप एपनिया सुना तो बहुत लोगों ने है आजकल, बट बहुत लोगों को इसके बारे में ज़्यादा मालूम भी नहीं है। तो मैं चाहूँगी सबसे पहले तो आप हमारे व्यूअर्स को इस प्रॉब्लम के बारे में इंट्रोड्यूस कराएं। आप बताइए, व्हाट इज स्लीप एपनिया? So you correctly cited that 1/3 of our life we sleep, 8 hours out of 24 hours. And all repair and rejuvenation occurs during the sleep time. It's very essential for living. जी You cannot live if you don't sleep. जी And there is observed that the guys who were not allowed to sleep for 2 weeks or so, they died. So it's essential for living. जी जी And even WHO says sleep is a very vital part of the health. As nutrition, exercise is, a जी good sleep is also a part of good health. जी जी But irony is, these days it is ignored. The sleep hygiene is not practiced by most of the people. Means we go to the bedroom, the TV is on, the music is on, the mobile, the laptop, the iPad is on, and then the guy is trying to sleep along with that. So this is not the actual way of sleeping. So there are protocols how to practice a good sleep, right? And with the fast lifestyle, we see people take alcohol, they drink tea, coffee late in the night, which disrupts sleep. A heavy meal will disrupt sleep. And there is a spectrum which people are not practicing all these things which we have cited, and they are just overweight, and then they snore. जी And when they snore, it means there is obstruction to the passage when they are sleeping.
and their oxygenation may be less. And I will not hesitate to say the commonest reason for divorce in the world is snoring. The husband and wife, if they snore, they sleep in different rooms, right? So that is one aspect of snoring. But whenever snoring is followed by a pause, repeatedly pause, it means the breathing during that time is not taking place. Means your oxygen is getting low. Means your brain is not going into deep sleep, or what we call as a REM sleep. And when they get up in the morning, they are not fresh, they are not active, they are not energetic, their concentration is poor, and they feel sleepy in the daytime. Their performance goes down in the daytime if they have not had a good night's sleep. So that is the importance of sleep. So, Dr. Rajput, does that mean sleep apnea is an obstruction in sleep or pause in sleep? You see, we have a passage in the neck. When we are breathing, it's going through that passage into the lungs. This passage is surrounded by muscles. The tone of the muscles, keeps it open. So in the daytime, when we are breathing, there is no sound or snoring. But when we fall asleep, the muscle tone goes off. Okay. All the muscles in the body become limp. When they become limp, the passage collapses. It narrows. And whenever air flows through a narrowed passage, it produces sound. What we call as snoring or kharante. And once people start snoring or kharante मारने शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे जैसे ही डीप स्लीप रैम में जाते हैं तो खराटे बंद भी हो जाते हैं. उसका मतलब ये नहीं है कि उसका पैसेज खुल गया. उसका मतलब ये है कि पैसेज बिल्कुल ही बंद हो गया, एयर फ्लो बंद हो गया. एंड इट्स ए सीवियर स्लीप एपनिया, मीन्स इट विल अफेक्ट हिज हेल्थ. This will lead to fall in oxygen, which will arouse the brain. And then brain will send signal to these muscles and activates them, and then these people will snort to open these passage, right? So this is happening repeatedly in the night. Means repeatedly people are snoring, stopping, oxygen getting low, and the result is sleep is fragmented. It is not a continuous deep sleep, sound sleep. So once the sleep is fragmented, brain is not rested, the performance in the daytime will decrease. And of course, the lack of oxygen or the hypoxia, what we call it, during night when he is sleeping, will cause systemic effects. Endothelial dysfunction, the blood lining dysfunctions in lack of oxygen. So they are prone for high blood pressure and then subsequently other cardiovascular events like heart attack and stroke. And sometimes even uncontrolled diabetes because of snoring and sleep apnea. So it has systemic effects, cause disease, and it is a disease. It's a well-recognized disease now. जी, तो डॉक्टर राजपूत, इसका मेन रीज़न क्या है स्लीप एपनिया का? पहले तो हमने इसके बारे में कभी सुना ही नहीं. आजकल ही ये नई प्रॉब्लम आई है जो बहुत कॉमनली अवेलेबल हो गई आज सडनली. इट हैज़ नॉट कम सडनली, ये एकदम से नहीं आई. ये पहले से थी, पर हमारी अवेयरनेस नहीं थी. जी जी. टेक्नोलॉजी के आने से, इक्विपमेंट के आने से, टेस्ट के आने से अब डायग्नोसिस आसान हो गई है. दूसरा, हमारी लाइफस्टाइल भी थोड़ी चेंज हो गई है. अभी लोगों का वेट ज़्यादा होना शुरू हो गया है. जी. अननेसेसरली फास्ट फूड खाने की आदत, अल्कोहल कंज्यूम करने की आदत, स्मोकिंग की आदत, और इवन जो स्लीप पैटर्न है, लोग 12, 1, 2 बजे सोते हैं और फिर उनका जो सर्कैडियन रिदम है वो ख़राब हो जाता है. जी जी. सुबह लेट तक सोते रहते हैं. बिल्कुल. और उनकी फिर क्वालिटी ऑफ स्लीप उससे ख़राब हो जाती है. जी.
So it was there earlier. Yes, awareness has increased now, and with technology we are able to diagnose more patients. Earlier पहले क्या होता था कि खरांटे आते हैं तो मतलब बढ़िया नींद आ रही है, ऐसा नहीं है. खरांटे itself, snoring itself, the sound itself means it's an interrupted, fragmented sleep. तो डॉक्टर राजपूत, ये प्रॉब्लम स्लीप एपनिया किन लोगों को ज्यादा होती है? हु आर मोर प्रोन टू गेट दिस डिजीज? इज इट हेरिडिटी? Yeah, see, our face morphology structure is dependent on genetics, the morphology of our parents, mother and father. हमारी शक्ल वैसी ही बनती है. So some people have a structural deformity in the face, in the sense their passage is narrowed structurally. They are born with a narrowed passage. मेडिकल लैंग्वेज में एक माइक्रोग्नैथिया और रेट्रोग्नैथिया होता है, जिसमें चिन छोटी और पीछे होती है, जिनका रास्ता छोटा होता है जी. दूसरा, वेट गेन सडनली बहुत ज़्यादा जब लोगों का हो जाता है तो फैट जो पेट में डिपॉजिट होता है, ऐसे गर्दन में भी डिपॉजिट हो जाता है, तो गर्दन मोटी हो जाती है जी जी. और वो फैट जो है रास्ते को नैरो कर देता है. ओके. उनको भी स्नोरिंग ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है. थर्ड जो है, जैसे जैसे हमारी एज एडवांस होती है, हमारी मसल्स की टोन कम होती चली जाती है. इलास्टिसिटी. सो 3 फैक्टर्स, either you are born with a narrowed passage, or you have accumulated a lot of fat, specifically in the neck, and then you are aged more than 40-45 years when the muscle tone has decreased tremendously. Okay. उसमें कई मसल डिजीज भी होती हैं न्यूरोलॉजिकली, इवन थायराइड एंड अदर थिंग विच कैन कॉज स्लीप एपनिया, जबकि मसल्स की जो टोन है उसमें कम हो जाती है. ओके. तो डॉक्टर राजपूत, स्लीप एपनिया से कौन सी प्रॉब्लम्स हमें हो सकती हैं, या किन प्रॉब्लम्स की वजह से ये प्रॉब्लम होती है? जैसा मैंने बताया कि वेट ज़्यादा इज द ओनली स्ट्रॉन्ग मॉडिफाइबल फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीप एपनिया जी. वेट रिलेटेड तो आपको पता ही है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज. पर ऐसा भी है कि स्लीप एपनिया जब वेट के साथ ज़्यादा है और ब्लड प्रेशर है और डायबिटीज है तो वो डेंजरस हो जाता है. ओके. जैसा मैंने जिक्र किया था कि एंडोथीलियल डिसफंक्शन हो जाता है, तो एंडोथीलियम ब्लड वेसल्स की इनर लाइनिंग है, उसके डिसफंक्शन से ब्लड की क्लॉट होने की टेंडेंसी हो जाती है. तो स्लीप एपनिया वाले पेशेंट हार्ट अटैक से, ब्रेन स्ट्रोक से, इवन पल्मोनरी एम्बोलिज्म जिसको लंग अटैक कहते हैं, ये सब प्रॉब्लम उनको आ सकती है. सो इट इज़ ए सिस्टेमिक डिजीज. अगर इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स देखे जाएं तो स्लीप एपनिया वाले पेशेंट में इन्फ्लेमेटरी मार्कर बहुत ज़्यादा होते हैं. okay. जैसे कोविड में बहुत जिक्र हुआ था कि सीआरपी और इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बढ़ जाते हैं, बट स्लीप एपनिया के पेशेंट के भी, ओवरवेट वाले पेशेंट को भी इन्फ्लेमेटरी मार्कर बढ़े हुए होते हैं. तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होती है. डॉक्टर राजपूत, इसके क्या ऐसे सिम्टम्स हैं जो, जैसे मान लीजिए किसी को ये प्रॉब्लम है तो वो कैसे डिटेक्ट करे, या उसको कब पता चलेगा कि दीज आर द सिम्टम्स एंड नाउ आई शुड गो फॉर अ टेस्ट टू गेट दिस चेक्ड? या बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने. इसके सिम्टम्स बहुत वाइड एंड वेरिड है. सबसे कॉमन सिम्टम स्लीप एपनिया वाले पेशेंट स्नोर करते हैं. सो जो भी साथ सो रहा है वो बताएगा कि he and she is snoring a lot, and snoring is getting interrupted by a silence, which is apnea. Okay, correct. And sometimes these patients, they wake up in the night with choking and gasping. जब बिल्कुल ही रास्ता बंद हो जाता है सांस का, उनको चोकिंग और गैस्पिंग हो जाती है. पानी पीते हैं, ये बार बार करवट बदलते हैं या टांगे हिलाते हैं, जिसको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम कहते हैं, या यूरिन के लिए बार बार उठते हैं, नॉक्चूरिया, रात को यूरिन के लिए उठना पड़ता है उनको. कुल मिला के पेशेंट की
नींद डिस्टर्ब होती है, उसको बार बार उठना पड़ता है, क्वालिटी स्लीप नहीं आती। ठीक है। और जब ये सुबह सो के उठते हैं तो उनको फ्रेश नहीं फ्रेश लगता, नहीं होंगे। वो टायर्ड फील करते हैं, लिथार्जिक फील करते हैं, उनको लगता है कि थोड़ा और सो जाओ, नींद पूरी नहीं हुई है। जी। और जैसे जैसे दिन बढ़ता है उनकी कंसंट्रेशन, मेमोरी, इंटेलेक्ट, इरिटेबिलिटी ज़्यादा होती चली जाती है। जी जी। सो थोड़ी सी सटल चेंज इन लाइफ आती है जिसको कि अप्रिशिएट जो साथ में रह रहे हैं वो करते हैं। बट स्ट्रॉन्गेस्ट सिम्टम जो है दैट इज स्नोरिंग, एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस, कि दिन में बैठे बैठे नींद आ जाती है, कार चलाते चलाते नींद आनी शुरू हो जाती है, या लंच खा के रोज़ सो जाते हैं। सो उनको रात की नींद को कंपनसेट करके दिन में सोना पड़ जाता है या स्लीपी फील करते हैं। जी। तो डॉक्टर ये जो टेस्ट है स्लीप एपनिया का कहाँ पर जाकर होता है? इज इट समथिंग वेरी नॉर्मल लाइक द नॉर्मल ब्लड वर्क दैट वी गेट लैब्स में? या सो आयरनी इज, इसका टेस्ट सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। जैसे आप सीटी स्कैन करा दी, अल्ट्रासाउंड करा दिया, एमआरआई करा दिया, ब्लड टेस्ट करा दिया, वो लैब तो जगह जगह अवेलेबल है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए क्या है कि एक तो इस टेस्ट को रात को 6-7 घंटे लगेंगे पूरे सोते हुए उसको ऑब्जर्व करना पड़ता है। उसमें ब्रेन की एक्टिविटी ईईजी देखना पड़ता है, आंखों की एक्टिविटी ईओजी, मसल्स की एक्टिविटी जिसको ईएमजी बोलते हैं, एयर का फ्लो देखना होता है कि बंद तो नहीं हो रहा बीच में, स्नोरिंग रिकॉर्ड करनी होती है, पल्स रेट देखनी होती है, ब्लड प्रेशर सोते हुए देखना होता है, ऑक्सीजन की सैचुरेशन मॉनिटर करनी होती है, चेस्ट की मूवमेंट, अब्डोमिनल मूवमेंट, लेग मूवमेंट, कोई 24-25 चैनल लगा के उनको 6 घंटे तक ऑब्जर्व करना पड़ता है। So it's a detailed test. इट्स ए डिटेल्ड टेस्ट, सो ए मिक्सचर ऑफ मैनी टेस्ट, जिसमें आप कह सकते हो कि ईसीजी भी है, ईईजी भी है, ईएमजी भी है, और ऑक्सीमेट्री भी है, यू नो मैनी मैनी थिंग्स विच आर रिकॉर्डेड। और फिर कंप्यूटर में उसको अगले दिन एनालाइज करते हैं। तो उससे हमें पता लगता है कि सोते वक्त इसकी एयर फ्लो कितना था, कम हुआ कि नहीं, ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप हुई कि नहीं, और हुई तो कितनी हुई, ब्रेन की एक्टिविटी देखी जाती है कि डीप स्लीप में गया या नहीं, कितनी बार जगा रहा ब्रेन। ओके, सो इवन द मसल मूवमेंट, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम जो बोलते हैं, वो भी रिकॉर्ड होती है। एंड ड्यूरिंग स्लीप एपनिया उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ा तो नहीं, हार्ट रेट ज़्यादा बढ़ा तो नहीं, क्योंकि टैकीकार्डिया और हार्ट रेट बढ़ना भी एक सिम्टम होता है इसमें, स्लीप एपनिया में। सो ऑल दीज थिंग्स आर कोरिलेटेड एंड देन ए कंसोलिडेटेड रिपोर्ट इज जनरेटेड। सो उसमें एक मेन जो चीज़ निकलती है जिसको बोलते हैं AHI, एपनिया हाइपोपनिया इंडेक्स। कितनी बार सांस बंद हुआ है, कितनी बार एयर फ्लो 50% से कम हुआ है, और इंडेक्स होता है कि 1 घंटे में 10 सेकंड से ज़्यादा कितने ऐसे इवेंट हुए हैं। तो नॉर्मल इंसान के 5 से कम ही होते हैं, और माइल्ड स्लीप एपनिया होता है जब 5 से 15 बार ऐसे इवेंट होते हैं, 15 से 30 होते मॉडरेट होता है, और 30 से ज़्यादा हुए तो सीवियर स्लीप एपनिया होता है। जो सीवियर स्लीप एपनिया है वो इनवेरिएबली ऑक्सीजन ड्रॉप के साथ होता है, उसकी ऑक्सीजन बहुत नीचे ड्रॉप हो जाती है, कई बार 60% 70% तक चली जाती है। सो दिस टेस्ट कैन बी डन इन द स्लीप लैब। वी हैव ए डेडिकेटेड स्लीप लैब, जैसे मैंने बताया मॉर्फियस सेंटर है हमारा। वहाँ पर रात को 9 बजे पेशेंट जाता है तो ये सारे उसके लीड्स हुकअप किए जाते हैं, वो रिकॉर्डिंग होती है, और सुबह 6 बजे पेशेंट फ्री हो जाता है, अगले दिन एनालिसिस होकर उसकी रिपोर्ट आ जाती है। कोविड के दौरान इन होम टेस्टिंग भी ज़्यादा पॉपुलर हुई कि पेशेंट्स लैब में या हमारे सेंटर में आना प्रेफर नहीं कर रहे थे, तो घर के अंदर ही वो आजकल लैब्स आ गई हैं जो कि ये सारे इलेक्ट्रोड्स लगा दिए जाते हैं, वो अपने आप रिकॉर्ड करते रहते हैं, और सुबह उसको कंप्यूटर में एनालाइज कर लिया जाता है। वो इन होम टेस्टिंग भी होती है। जी, तो डॉक्टर राजपूत हमें थोड़ा मॉर्फियस के बारे में और बताइए, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आप केटर करते हैं, और ये कहाँ पर है आपका सेंटर? वी हैव ए मॉर्फियस स्लीप सेंटर एट बसंत कुंज। वहाँ पर हम सिर्फ स्लीप स्टडी इन हाउस भी करते हैं, और एट द सेंटर
पेशेंट के घर में भी होती है, वो सारी वहाँ पर एनालाइज हो जाती हैं। एनालिसिस, डेटा एनालिसिस के लिए टेक्नीशियन होते हैं, वो दिन में एनालाइज करते हैं, रिपोर्ट जनरेट करते हैं। तो एक एस्पेक्ट तो है डायग्नोस्टिक, जहाँ पर वहाँ स्लीप स्टडी होती है। नंबर 2 थेराप्यूटिक, मीन्स उसका इलाज करना है, तो उसमें डिवाइसेस होते हैं, जैसे CPAP नाम सुना होगा, कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, BiPAP और AVAPS, और बहुत आगे एडवांस वेंटिलेटर और रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं, प्लस ऑक्सीजन कंसनट्रेटर। तो ये सारे डिवाइस इंपोर्ट होते हैं, एक्वायर होते हैं, और वो पेशेंट्स के साथ लगा के उनको टाइट्रेट किया जाता है कि कितने प्रेशर पे वो ठीक हो रहा है, तो वैसा रिकमेंड किया जाता है उनको, फिर वो यूज़ करते हैं। सो वी आर डूइंग दिस एस्पेक्ट एज a sleep lab, plus I have my clinic also there where we see other aspects of the respiratory illness. जी। सिर्फ स्लीप से ही ये नहीं होता है, कि कई बार क्या है कि स्मोकर्स को COPD होती है, या रेस्पिरेटरी फेलियर ड्यू टू अदर इलनेसेस होते हैं, जिनको कि BiPAP और वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है जी। तो उन पेशेंट को भी मैं देखता हूँ, और उनको भी वहाँ पर डिवाइस लगाया जाता है, सजेस्ट किया जाता है, उनका भी इलाज वहाँ किया जाता है। जी। तो डॉक्टर, अक्सर लोगों को सुनने में आता है कि ये इनका जो ट्रीटमेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल द टेस्ट इज़ एक्सपेंसिव, बट आई कैन अंडरस्टैंड व्हेन इतनी सारी चीज़ें डिटेल टेस्टिंग में हो रही हैं तो कॉस्ट तो होगी डेफिनेटली उसकी। बट लोगों का ये मानना है कि जो इसकी मशीन है BiPAP या ये भी बहुत एक्सपेंसिव है, और कई लोग इसको लेने के बाद कुछ टाइम यूज़ करने के बाद सोचते हैं अब हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है एंड वी आर फीलिंग बेटर। तो इज़ दिस प्रॉब्लम रिवर्सिबल? Yeah, again you have touched a very important thing. ये वैसे ही है जैसे कि ब्लड प्रेशर वाला पेशेंट होता है, उसको BP की दवाई दो और वो BP उसका कंट्रोल में आ जाता है, वो भी बंद करता है, वो भी देखता है कि मैं तो ठीक हो गया। इट इज़ नॉट सेफ, इवन फॉर ब्लड प्रेशर इट इज़ नॉट सेफ। सिमिलरली डायबिटिक पेशेंट, जैसे शुगर नॉर्मलाइज होती है, वो बंद करने की टेंडेंसी होती है। सो यू हैव टू teach these patients the importance, first why they have got this disease and why it is important to continue treatment to prevent the damage to the system, क्योंकि एक बार हार्ट अटैक और स्ट्रोक हो गया तो परमानेंट डैमेज हो जाता है। करेक्ट। So if you are treating sleep apnea with CPAP, you are not only treating the sleep apnea, you are controlling and you are reducing the risk of heart attack and stroke in these patients. Other problems also. The control of blood pressure becomes better. The control of diabetes become better. The requirement of the drugs goes down. Okay. So in a way, patient को रेगुलरली मॉनिटरिंग और काउंसलिंग करने की बड़ी ज़रूरत होती है इसमें। जी। अगर पेशेंट को एक CPAP लगा के छोड़ दो तो जैसा आप कह रही हो कि वैसे ही हो जाएगा कि वो थोड़े दिनों में छोड़ सकता है। रेगुलर मॉनिटरिंग के आजकल सारे डिवाइस के अंदर एक चिप होता है, जिसकी जैसे BP ब्लड प्रेशर वाला पेशेंट कम से कम महीने में एक बार ब्लड प्रेशर तो नपवाता ही है, रूटीन चेकअप। तो इसलिए ऐसे वाले पेशेंट भी 1 महीने में नहीं तो 2 या 3 महीने में उनको आके डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, और चिप की एनालिसिस करके उससे पता लग जाता है कि इसने कितने दिन मशीन लगाई, कितना इसका एवरेज प्रेशर था, उसने AHI करेक्ट किया या नहीं किया, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो एक बार पेशेंट को दिखा दो, समझा दो, तो उसकी कंप्लायंस इम्प्रूव हो जाती है। बट आजकल क्लाउड से भी कंट्रोल हो जाता है। आजकल नई मशीनें आई हैं जो क्लाउड से चल जाती हैं, इन द सेंस कि हम अपने सेंटर में बैठे बैठे देख लेते हैं कि वो पेशेंट ने मशीन लगाई या नहीं लगाई, और क्लाउड जो है, क्लाउड के थ्रू वी कैन सी व्हाट इज़ द प्रेशर विच इज़ बीइंग जनरेटेड इन द मशीन, और हम सारा डेटा, सारी सेटिंग चेंज भी कर सकते हैं वहाँ से, हम अपने ऑफिस में बैठे हुए। सो ऑल दीज कंट्रोल्स हैव बिकम ईजियर with the latest technology. जी। The control can be better. तो डॉक्टर राजपूत, मैं चाहूँगी आप हमारे व्यूअर्स को जाने से पहले एक टिप दीजिए, जिससे कि वो घर बैठ के अपना एक प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे उनके लिए बेनिफिट हो।
सो मैंने जैसे टच किया था स्लीप हाइजीन। स्लीप हाइजीन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि सोना कैसे चाहिए। जैसे आप कभी होटल में जाते हो 5 स्टार में, आपको कमरा मिलता है शांत, बेडशीट अच्छी बनी होती है, एनवायरनमेंट अच्छा होता है, आपको नींद बहुत बढ़िया आती है। सिमिलर काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर घर में क्रिएट होना चाहिए सोने वाले कमरे में। मीन्स हमारे बेडरूम में ये नहीं कि हम वहाँ ब्रेकफास्ट भी उसी पे कर रहे हैं और लंच भी वहीं करते हैं, चाय कॉफ़ी भी वहीं पी रहे हैं, हम म्यूज़िक भी वहीं चला रहे हैं और आईपैड से भी हम वहीं खेल रहे हैं और टीवी भी हम वहीं देखते हैं। सो दिस टास्किंग शुड नॉट बी combined with this sleep room. So you should go to sleep only when you are feeling sleepy. तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और शाम के टाइम 4-5 बजे के बाद चाय कॉफ़ी जो ब्रेन स्टिमुलेट करती है, नींद को डिस्टर्ब करती है, वो नहीं पीनी चाहिए। अल्कोहल और स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। और इवन एक्सरसाइज जो पेशेंट करते हैं, लेट नाइट एक्सरसाइज का कल्चर चल रहा है, लोग 9-10 बजे जिम में जाके एक्सरसाइज करते हैं। अगर एक्सरसाइज 9-10 बजे करोगे तो बॉडी में एड्रेनलिन लेवल इतना ज़्यादा होता है कि वो ब्रेन को स्टिमुलेट करके रखता है, नींद को हैम्पर करता है। एक्सरसाइज करनी है तो दिन में सवेरे करनी चाहिए, नॉट इन द इवनिंग एंड द लेट नाइट, इट विल हैम्पर। सो और भी बहुत सारे स्टेप्स हैं स्लीप हाइजीन के जो फॉलो करने चाहिए। प्लस इंसान को रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, वेट के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। आइडियल बॉडी वेट अगर मेंटेन्ड है तो आपका रिस्क ऑफ स्लीप एपनिया बहुत कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। जी, थैंक यू सो मच। बहुत ही वंडरफुल टिप्स और बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा ये सेशन। आई एम वेरी श्योर व्यूअर्स को इससे बहुत बेनिफिट हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर डॉक्टर राजपूत। थैंक यू वेरी मच। तो जाने से पहले डॉक्टर मीनूज टिप। दोस्तों, अगर आपकी उम्र 40 क्रॉस कर चुकी है और अगर आपको कोई भी ऐसा सिम्टम, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने इतना कुछ हमें बताया, अगर हमें ऐसी कोई भी प्रॉब्लम फील होती है, एंड स्पेशली अगर हमने रीसेंट पास्ट में बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया सडनली, या अगर हम बहुत ज़्यादा स्नोर करते हैं, तो एक स्लीप एनालिसिस ज़रूर करा लेना चाहिए। इट इज़ नॉट दैट वी हैव स्लीप एपनिया ओनली। हो सकता है कई बार माइल्ड स्लीप एपनिया हो विच कैन बी क्योर्ड जस्ट बाय लिटिल प्रिवेंशन और सम लाइफस्टाइल चेंजेस, और बिकॉज प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर दैन क्योर। ये स्लीप एनालिसिस हमें सिर्फ स्लीप एपनिया के लिए नहीं, लेकिन और भी होने वाली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के लिए एक बहुत अच्छा प्रिवेंटिव मेजर रहेगा। थैंक यू।